Hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video is about pharmacovigilance or medical information, especially if you are looking a job in Australia. So many of you always ask me a lot of questions. I already made basically two previous videos about this pharmacovigilance, but today's video I'm going to discuss there is some new information if you are looking a job in Australia. So my previous video you can watch. I already given the my link in the description. So basically, if you are looking a job in pharmacovigilance, so main criteria, what is the criteria in Australia? In India, mostly if you have zero experience, you have 1 year, 2 year experience, you are a pharmacist, you are Ayush, pharmacy, nursing, dentistry, and even if you are from BSc, MSc, many people are working in India, But here, what is the requirement, and especially if you are looking a job because you need to be a visa, and so the company is given to you visa or not. This is the main criteria to work in Australia, and so the I always said that in my all my videos, you have something special. I mean, आपके पास कोई एक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए स्पेशल, है ना। जैसे कि मैं पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था आपको कि एक लैंग्वेज आप मस्ट जो है लर्न करें अपार्ट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस, है ना। इंडिया के बाद कोई भी जैसे कि इस जॉब के लिए जो है पहले रिक्वायरमेंट है वो है नेटिव जापानीज स्पीकर और फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो अगर आप जापानीज जानते हैं, इंग्लिश तो आपको आती ही आती है, आपने फार्मेसी किया इंडिया में तो। और उसके बाद ये जो है बाकी चीजें मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस दिस एंड दैट, तो यहाँ पर अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं, आपको जापानीज नहीं आती है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन कट हो गई। अब आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी small market because it's just a 2.5 crore population in Australia. So what they did, the companies, they are working some other small country, for example Malaysia, Singapore. These are also small countries, so they combined 3-4 countries and say that they hire one person in Australia, so this person can look also those countries, the farm and the people-related activities or the some report, their report from those countries, so that's why they are asking. So I here assuming that the company is working in Japan, so Japanese that ADR reporting they will report to Australia, so you have to handle those report as well. So my name is Dr. Akram Ahmed. I'm a pharmacist, lecturer, and medical scientist in Australia. I always make videos for you if you are looking a job in abroad, especially if you are a health science graduate. So please like and subscribe my videos so I can make you more videos for you. चलिए दूसरे एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, दूसरे इन्होंने जो है एक इसने टाइटल दिया हुआ है सीनियर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। इसने पहले वाले ने जो टाइटल दिया था ये था फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। अब होता क्या है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टाइम्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। कोई पेशेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी हेल्थ प्रोफेशनल को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक मेडिकेशन इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट यहाँ पर रखा जाता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक एक जॉब होती है और उसमें हायरिंग की जाती है। आप मस्त फार्मासिस्ट हैं, बेसिकली अगर आपकी हायर डिग्री है, आपने मास्टर डिग्री और पीएचडी की हुई है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस डिपार्टमेंट में। फिर जो है मेडिकल अफेयर्स, तो ये सारी जो है ना, ये सब इंटर रिलेटेड जॉब्स होती हैं, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल इंफॉर्मेशन और मेडिकल जो है राइटर और जो है मेडिकल अफेयर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, तो ये सारी जॉब्स इंटरलेटेड होती हैं। सारे लोग एक डिपार्टमेंट में मिलकर काम किया करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको तो इतना वर्कलोड नहीं है, समझिए दोनों काम एक ही बंदे को करना है। फार्माकोविजिलेंस जो रिपोर्टिंग हुई उसका काम भी करना है, और जो है कोई भी अगर क्वेरी आती है आपके पास किसी उनके 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 प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो भी आपको देनी है ना। तो ये थी। अब देखिए यहाँ पर एक वीक पहले ये एप्लीकेशन आई थी और यहाँ पर 37 एप्लीकेशन ऑलरेडी इसको कर दिया है। मतलब जो जापानीज लैंग्वेज के जानकार हैं और ऑलरेडी उनके पास एक डिग्री है, उनके पास एक्सपीरियंस है पीवी का, तो 37 ऐसे लोग थे ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब लगा लीजिए ये दूसरी वेबसाइट पर भी एडवर्टीजमेंट किया हुआ है, जैसे कि हो गया seek.com, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया, उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो ऐसा लगा लीजिए कि इस जॉब पे मैं समझता हूँ कम से कम 150 एप्लीकेशन होंगी और शायद उनके पास एक पोजीशन होगी। तो 150 में से एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए कितना हाई कंपटीशन है पीवी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। This is another advertisement, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। सो यहाँ पर दिस इज लाइक 23 घंटे पहले उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है ये, और 10 एप्लीकेशन लोगों ने कर दिए हैं,
है ना। और आप तो आप देखिए कितना कंपटीशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब के चांसेस नहीं, जॉब के चांस हैं, जॉब मिलती है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर जॉब यहाँ बहुत है, बहुत सारी जॉब्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर 18 एडवर्टीजमेंट राइट नाउ मैंने देखे थे, तो मतलब मैंने 3 ही एडवर्टीजमेंट को मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सबको वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो इफ यू सी हियर व्हाट दे आर आस्किंग, यू नो द प्रीवियस वीडियो देयर वाज अ जापानीज लैंग्वेज दे वर आस्किंग, if you don't know Japanese, so you cannot apply for this job. Now here they are asking that bachelor degree in pharmacy, medical or health science, up to knowledge of pharmacovigilance में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये है ना, ये तो के पास होगा ही। अब लास्ट में दे आर सेइंग दैट यू मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया और यू आर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और अप्रोप्रिएट वीजा होल्डर। तो इसमें इस केस में यहाँ पे क्या होगा, या तो आप ऑलरेडी यहाँ स्टडी करने आए हुए थे तो फिर आप जो है 485 वीजा पे हैं, या फिर आप जो डिपेंडेंट हैं आपकी वाइफ पे या आपके हस्बैंड पे, तभी भी आप यहाँ पे एलिजिबल काम करेंगे, या आपके पास पीआर है, तो आपके पास कोई भी वीजा है, आपके पास फुल वर्क राइट है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए ये दूसरी जॉब में भी आप जो है शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, पहली जॉब में जापानीज लैंग्वेज की वजह से, दूसरी जॉब में आपको वीजा स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं ये। अगले आप देखते हैं कि तीसरी जॉब में क्या स्किल्स ये मांग रहा है। तो देखिए ये तीसरी जॉब है लिली। लिली बहुत ही फेमस कंपनी है, जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया में, कि पहले जो है रैनबैक्सी, लिली रैनबैक्सी पहले दोनों को मर्जर था इंडिया के अंदर, बहुत फेमस कंपनी है ये। तो इन्होंने फार्मा विजिलेंस इनको एसोसिएट चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्हें एक वीक पहले एडवर्टीजमेंट था और 27 एप्लीकेशन यहाँ पर भी चले गई है। तो कंपटीशन तो है, मगर इतना बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है कि 1000 एप्लीकेशन आ गई या 500 एप्लीकेशन आ जा रही है ना। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि 100 एप्लीकेशन लगा लीजिए आप एक जॉब के ऊपर, और उसमें से 1 या 2 लोग भी, ये लोग जो है हारेंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इन्होंने क्या मांगा है। अगेन दे आर आस्किंग बैचलर डिग्री इन हेल्थ साइंस, फार्मेसी, नर्सिंग, उसमें होना चाहिए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। देखिए और इन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं दिया है कि भैया आपको जो है वीजा या देंगे या नहीं देंगे। तो इस जॉब पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जो है इंडिया के अंदर है, आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपके पास फार्मेसी डिग्री है ना। तो चांसेस बहुत ही कम है, मैं कहूंगा शायद 2 से लेके 5% आपके चांसेस भी नहीं है जॉब के, इफ यू आर इन इंडिया और बेसिकली इफ यू आर इन योर कंट्री आर लुकिंग जॉब इन पीवी। यू नो पीवी में जितनी भी जॉब्स होती हैं, इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया then most likely you will get shortlisted and you have to be interviewed, then might be you got job. But if you are in your country and तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो कोई आपको हायर करे वहां से और फिर वो आपको वीजा को स्पॉन्सरशिप करे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर मैं फिर तो बताता हूँ आपको कि फार्माकोविजिलेंस में जो स्कोप है लॉन्ग टर्म में इंडिया में बहुत ही शानदार है, और मैं कहूँगा आप इस फील्ड में जा सकते हैं अगर आप न्यू हैं और जान चाहते हैं इस फील्ड के अंदर। आप ये सोचते हैं कि आपने फार्माकोविजिलेंस में आ गए और कोई कंपनी आपको यहाँ बुलाएगी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं, वो आपको जो है वीजा देंगे, तो ये मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल है। तो वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है। आप दूसरी कंट्रीज में भी यही सिस्टम है कि अगर आप वहाँ ऑलरेडी हैं, किसी भी वीजा पे आप हैं, और उसके बाद जो है आप लोग जो है अपना परस्यू कर सकते हैं करियर। अब बेस्ट सिनेरियो आपके पास क्या है कि आपने अगर 1 से लेके 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने इंडिया में जॉब किया हुआ है, और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए किसी भी वीजा में। फॉर एग्जांपल अगर आप डिपेंडेंट हैं, वाइफ को एडिशन करवा दीजिए, डिपेंडेंट बन कर जाइए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास 4 साल मिल जाएगी, क्योंकि जो स्टडी करने आएंगे आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, 2 साल का डिग्री होगी, वो स्टूडेंट वीजा पर रहेगा, और मगर आप रहेंगे डिपेंडेंट, फुल वर्किंग राइट रहेगा आपके पास। और दूसरा मेन ये है कि अगर जो है आपको जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है आपके पार्टनर की, उसके बाद आपको मिलता है 485 वीजा, तो वो भी 2 साल का होगा। तो ये टोटल मिलाकर 4 साल हो गए, और इन 4 साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी फिर आपको स्पॉन्सर कर सकती है 186 पीआर के लिए। तो ये पीआर का गणित हो सकता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं पीवी के बेस पे। तो स्पॉन्सरशिप है नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।